yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों पूरे फॉर्म में हैं। कुवैत दौरे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को बेवकूफ जोकर कहा और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के झूठे प्रचार को बेनकाब किया। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ऑपरेशन बनियान अल मरसस का स्मृति चिन्ह भेंट किया था और भारत पर अपनी जीत का दावा किया था। हालांकि बाद में पता चला कि ये तस्वीर 2019 के चीन सैन्य अभ्यास की थी। इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि चीजों को सही तरीके से कॉपी करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। ओवैसी ने कहा कि हम बचपन में सुनते थे कि नकल करने के लिए अकल चाहिए, नालायकों के पास तो अकल भी नहीं है। I am telling you something, fact about the fact. I think so yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there, your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in. Pakistan was brought in grey list. One Sajid Mir. If you open FBI website and type Sajid Mir, there's a 5 million reward on his head. Now Sajid Mir was the main person who engaged David Headley. He told him to change his name for Dawood Gilani to David Headley. Now Pakistan said he's dead. In Germany, when the final meeting of FAT was held, Pakistan came into that meeting and said, Sajid Mir is alive. Now, how can a person who's dead becomes alive? That in itself clearly shows that what Pakistan does, and then the Pakistani court gave him a sentence of 15 years for terror financing. So bringing Pakistan and FATF is very important because our apprehension is that this 2 billion loan which IMF is giving, that will be used by Pakistani military. And it is a known fact, whenever this loan is given, it goes to all the core commanders of Pakistan army. Someone has very rightly called them crore commanders of Pakistan army. So I request you that if in whatever way possible, please use your good offices. You are, mashallah, you are very well placed in this country, and so that, and also Kuwait is a co-chair of GCTF. And then Kuwait has the Secretary General post of GCC. And you must also know that Kuwait had handed over an ISIS suspect to India in 2019. So this is what I have to say, and thank you very much. Don't get carried away by this Haza Majnoon propaganda. They said they are. No, no. They are Majnoon. Yes. See. And lastly, as rightly said, we are concerned with the deep state of Pakistan, the ISI.
and the open free run been given to the terrorists in Pakistan. You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बताइए, कुछ नहीं है. और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू. हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है. और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है. तो ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा इनका है. थैंक यू वेरी मच. इससे पहले बहरीन के दौरे पर भी ओवैसी ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई थी. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक हमलावर है, पीड़ित नहीं. हमने भारत का पक्ष रखा. हमने उनको बताया कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड, प्रमोटेड, ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जानें गई. हमने पूरे डेटा उनको दिया कि चाहे वो मुंबई का ब्लास्ट हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर के असम्बली के सामने जो सुसाइड बॉम्बर का ब्लास्ट हो, फिर पुलवामा हुआ, उससे पहले पठानकोट, फिर पिछले साल रेसी में एक बस के ऊपर गोलियां चलाई गईं. तो हमने बताया कि ये पूरा इसके जिसमें ट्रेडमार्क्स पाकिस्तान के हैं. और एक बात हमने बताई कि जो TRF, जो ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1262 जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो सैंक्शन कमेटी, हमने दिसंबर 2023 में कह दिया था कि TRF पे आप सैंक्शन लगाइए, ये यहाँ पर भारत में गड़बड़ कर सकता है. तो TRF के बारे में अभी से हमने बोले, दिसंबर 2023 से सरकार ने UN सिक्योरिटी काउंसिल को 1262 को सैंक्शन का बता दिया. तो ये है. और तीसरी बात ये है कि बार बार ये जो पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा ही विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान एग्रेसर है. और हमने 15 अप्रैल को जो आसिम मुनीर की स्पीच हुई, जिन्होंने कश्मीर के बारे में जो बात कही, उसके बारे में हमने बताया. और फिर देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इससे भी साबित होता है कि जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद TRF ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मरतबा इंटरनेट के ऊपर उसको कबूल किया. और भारत सरकार ने, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, साइबर के एक्सपर्ट्स ने मालूम किया, तो वो तो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट के करीब से उन्होंने उसको इंटरनेट पे डाला. वो तो फुटप्रिंट्स निकल नहीं सकते. और तीसरे, हमारी देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA ने केस रजिस्टर किया है, तो इसमें पूरा इसका इन्वॉल्वमेंट है. और फिर भारत तरफ से जो एक्शन लिया गया, तो पहले 9 मुकामात को हमने निशाना बनाया जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है. और पाकिस्तान ने बेहूदगी की, तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया. तो ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं है, हमारा कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफ़रतों को बढ़ाना चाह रहा है. और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं. तो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई और सब ने इस पॉइंट को उनके सामने रखा और उन्होंने भी सुना है. हम उनको ये कह रहे हैं कि आप भारत को आप जो देख रहे हैं, और भारत यहाँ पर बहरीन में तो 1962 तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गल्फ रुपी इस्तेमाल होता था. और भारत पहला देश है जो एंटी कॉलोनियल स्टैंस लिया था यूनाइटेड नेशन में, और उसकी वजह से बहरीन को यहाँ पर अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना पड़ा. और हमने उनको बहरीन की हुकूमत को याद भी दिलाया कि 2018 और 22 में आप ही के एक बहरीनी डिप्लोमेट की वजह से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया. और एक आतंकवादी जो यहाँ पर छुपा हुआ था, उसको 2015-16 में उन्होंने भारत सरकार के हवाले भी किया. तो हम उनसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में FATF के मेंबर हैं और वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लेकर आए, क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है. और 2026-27 में बहरीन
सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी होने जा रहा है, तो इस एतबार से भी ये बहुत अच्छा रहा। असदुद्दीन ओवैसी उन नेताओं में शामिल हैं जिन्हें भारत सरकार ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के तहत विदेश भेजा है ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि भारत आतंकवाद का शिकार है।